ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 19-20 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 4 ਆਨੇ ਦੇ, ਦੇ ਵਰ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਟਸ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਐਡੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ वर्कर्स लगाते हैं भी गर्म तबीयत देन, तो ये झूठा एलिगेशन है और उसका काउंटर अभी ये चुनाव आ रहा है 2022 का। आम अफसरां च भी देखा जाता ਤੁਹਾਡਾ काफ़ी खौफ है। अगर वो मेरे वर्कर की बात नहीं सुनेंगे, लोगों से बेइंसाफ़ी करेंगे, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहता। ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦਾ ਇੱਕ BDPO ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? और उसका असर हुआ भी, उसको नौकरी से निकाला गया उसके बाद, और वो कोर्ट में धक्के खाता फिर रहा। आज तक कोर्ट में भी उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। ਲੀਡਰ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੱਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। भी कम से कम मैं अपने स्तर पे मैं झूठा वायदा नहीं करता। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? पंजाब के अंदर सबसे पहले बादल साहब ने ही किसान की जो हालत थी उसको देख के बिजली मुफ्त की थी। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ CM ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? भाई कांग्रेस पार्टी में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो मैं छोड़ के क्यों आता भाई। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? जहाँ तक प्लान की बात है, क्योंकि छोटा सा पंजाब है और मुझे इस बात का और भी गर्व है भी जो आने वाला मुख्यमंत्री है पंजाब का वो हमारा मेंबर पार्लियामेंट। ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ? ये तो जग जाहिर है, अकाली दल की फाइट जो है कांग्रेस के साथ ही होने वाली है और तो कोई पार्टी मुकाबले में नहीं है। बीजेपी का तो मेरा ख्याल है शायद एक भी सीट ना जीत पाए। वो तो उनको तो 117 उम्मीदवार जो है ढूंढने पड़ रहे हैं आज भी। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਨਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਨਵਾ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮਿਲੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਨਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਕੌੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਨਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹਨ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਨਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 1992-2002 ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997, 2007 ਤੇ 2012 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। मेरा परिवार जो है ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ
स्वर्गीय चौधरी काशी राम जी 1972-77-80 च फाजिलका विधान सभा क्षेत्र तो MLA चुने गए लगातार और कैबिनेट के मंत्री भी रहे। उन्होंने जी अनटाइमली डेथ सी वो बाद जरा लोगों ने परिवारिक लोगों ते बड़ा दबाव बनाया भी तुहाडी आप दी सीट है और तुसी इत्थों चुनाव लड़ो। अनफॉर्चुनेटली मैनू पार्टी की टिकट नहीं दी और 92 के अंदर भी मैनू ये वायदा करके भी तुहानू चुनाव लड़ाना है और मैं इस्तीफा भी दे दिता सरकारी नौकरी तो, लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट ते मेरी जी टिकट कट दी और मैनू आज़ाद उम्मीदवार उतों लड़ना पिया और लोगों के भरपूर स्नेह नाल मदद नाल मैं विधायक बनया। और वो बाद वड्डी चुनौती ये सी भी साडे जिले के अंदर जाखड़ परिवार का बड़ा वरसफ सीगा और वो होर आपदे किसी प्रतिद्वंदी नूं देखना नहीं चाहते सी भी वो साडे बराबर आके या काम करके अगे जावे और वही जिदोजहद चलती रही। लेकिन लोगों के आशीर्वाद नाल असी जदों वो एक पिछड़ा हुआ इलाका सी शहर के अंदर भी सीवरेज का नवे सिरों तो काम शुरू किया, पीण के पानी का प्रबंध किया, पिंडां के अंदर जिहड़ियां है नहरां सी सारियां नहरां पक्की कीतियां, शिक्षा का स्तर उच्चा किया, मतलब हर जी बेसिक एमिनिटी सी वो प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। और वो बाद 2002 च मैनू चुनिया, मैनू कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्लीमेंट्री सैकटरी भी बनाया और उदों भी बहुत सारा जो अधूरा काम सीगा रह गया सीगा वो पूरा किया। जिवें कि मैं जो PSTC का चेयरमैन सी 30 करोड़ रुपए दे पहली बार फाजिलका विधान सभा क्षेत्र के अंदर पक्के खाले बनाए गए जिस नाल किसानों को बहुत लाभ प्राप्त होया और तकरीबन 2 टेन्योर के अंदर 48 स्कूल अपग्रेड किए गए। वो मतलब यही सीगा भी साडे पेंडू खेतर के अंदर और खास करके बॉर्डर एरिए के अंदर शिक्षा का प्रबंध नहीं सी, लड़कियां नूं जिन्ना स्तर का स्कूल होंदा सी उन्हें पढ़ के हटा लिया जाता सी और कोशिश की हर दूसरे तीसरे किलोमीटर से +2 स्कूल होवे। इसे तरीके नाल सेहत सुविधावां वास्ते भी बड़ा है उन्होंने प्रायोरिटी ते रख के काम किया गया और चौमुखी विकास होया। चुनाव जी जितों तक 7 ते 12 की गल है, ये चुनावी इक्वेशन ऐसी होंदी है, एक जड़े है कॉइन के सिक्के के 2 पहलू होंगे, एक जित एक हार। जो लोग नकार देंगे ने, लोग पसंद नहीं करते, उदों वोटां नहीं पाते, उदों हार जाते हैं। लेकिन मैनू इस गल का बड़ा आई एम प्राउड ऑफ इट भी अज भी पूरे जिले के अंदर जिथे 4 विधान सभा क्षेत्र ने 3 विधान सभा क्षेत्र के लोग अज भी मेरे साढ़े को कामकाज वास्ते आते हैं और यही गल है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने जो कि मैं फाजिलका वास्ते टिकट की मंग की सी, वो कहते नहीं तुहानूं अबोहर चुनाव लड़ना पऊगा क्योंकि अबोहर के अंदर सानूं एक मजबूत ईमानदार मजबूत उम्मीदवार चाहिए जिहड़ा लोगों की बांह फड़ सके। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इलाके के लोग जानते हैं भी रिणवा परिवार ने बड़े ईमानदारी नाल, नेक नीति नाल और निडर होके नुमाइंदगी की है, चाहे वो स्वर्गीय चौधरी काशी राम जी सीगे, चाहे मेरे बारे है। असी ईमानदारी नाल कोई आदमी अज मैं चैलेंज करदा असी किसी दे 1 रुपये के रवादार नहीं, साढ़े कोल वही जायदाद है जो सानू अपने पूर्वजों तो मिली सी और मैं उम्मीद रखदा भी आने वाले समय च भी उस जी परंपरा हैगी वो परिवारिक लिगेसी है उन्होंने असीं अगे लैके जावांगे। इन्ना पुराना पिछोकड़ तुहाडा परिवार दा है कांग्रेस के प्रति, तुसीं भी करीब 19-20 साल कांग्रेस के प्रति वफादारी की, ऐसी की मजबूरी आ गई भी यकदम कांग्रेस नूं अलविदा कहना पै गया? 2017 का विधान सभा क्षेत्र चुनाव सीगा ते मेरी जी सर्वे रिपोर्ट कह लो सब तो पहली कतार के अंदर मैं उम्मीदवार सी कला और इन्होंने टर्न कोट नूं अकाली दल तो जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट सी शेर सिंह घुबाया उन्होंने बेटे नूं टिकट देती, वो एक बहुत वड्डा झटका सी। लेकिन पार्टी लीडरशिप ने बड़ा एश्योर किया भी रिणवा साहब तुहाडा मान सम्मान बरकरार रहूगा, तुहाडू MLA नालों वध जिहड़ा है उत्ते चेयरमैन बना के उहदे ते रखांगे। और जदों सरकार दे अंदर बहुमत आ गया 77 सीटां जीतियां, उन्होंने कदे किसी गल की परवाह नहीं की, सब तो वड्डा कारण ये रहा। और दूसरा जदों उन्होंने उस MLA दे बाप नूं जिहड़ा कि 10 साल तो
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 4 ਆਨੇ ਦੇ, ਦੇ ਵਰ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਟਸ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਨੀ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਐਡੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਹੈ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ? ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ? ਸੋ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਈ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 139 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਸਰੀਕੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕੋਫੈਂਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ 139 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 54 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰਮ ਤਬੀਅਤ ਦੇਣ, ਔਰ ਵਰਕਰ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ऐसा है, मैं नहीं कहता भी मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, नाराज़गी भी पार्टियों में हो जाती है, लेकिन ये जो है मेरे पर एलिगेशन लगाना गलत है। मैं जब भी
मुझे नुमाइंदगी करने का मौका मिला, मैंने माइनॉरिटीज़ को मेरे हलके के अंदर पहली बार एक कंबोज बिरादरी के व्यक्ति को म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान बनाया गया, ठीक है। और जो अलग अलग ओहदे थे उन पे अलग अलग लोगों को, मैंने कभी भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं की। अब आप जब कहते हो भी टेम्परामेंट की बात है, वो तो अब एक जेनेटिक इफेक्ट होता है, लेकिन जिन लोगों को समझ है इस बात की, जिन लोगों ने हमारे साथ मिलके काम किया है, हाँ, मेरे को जो जी हजूरी वाले व्यक्ति पसंद नहीं है और मैं भ्रष्टाचार पसंद नहीं करता। जो मैं खुद नहीं करता तो मैं दूसरे को क्यों करने दूँ जहाँ पे आम आदमी का नुकसान हो रहा होगा। तो ये झूठा एलिगेशन है और उसका काउंटर अभी ये चुनाव आ रहा है 2022 का, तो पता लग जाएगा। अभी मैं जो पंजाब के अंदर और अबोर इलाके के अंदर जो पहला परिवार है कांग्रेस का, उसके सामने चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और नतीजा और लोग साबित करेंगे, मैं नहीं करूँगा। वो यहाँ पार्टी के वर्कर ही साबित करेंगे उस चुनाव को में मुझे विजयी बना के। मेरा इस बात पे पूर्ण भरोसा है। नहीं तो मैं 50 साल पुरानी सीट है, 1972 में मेरे चाचा जी पहली बार एमएलए बने थे और अब 2022 आ गए। पूरा 50 वर्ष का समय थोड़ा नहीं होता, तो 50 वर्ष के अंदर हमने कुछ किया होगा तभी लोग हमारे साथ हैं, किसी के कहने से नहीं भी हाँ उसने फलाने कह दिया। अब ये टेम्परामेंट की बात है, अभी कोई गलत कह रहा है तो मैं उस पर पुलिस का पर्चा दर्ज नहीं करवाता, मैं उसी को समझाता हूँ। अगर नहीं मानता तो जोर से भी कहता हूँ भाई भैया ये काम यहाँ नहीं चलेगा। अब इसको आप स्वाभाविक बात के गिन से लो, दूसरी तरीके से ले लो। एक डॉक्टर साहब बड़ा होर सेम इल्ज़ाम है भी ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਈਵਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो इस चीज़ ਨੂੰ आम अफसरां 'ਚ भी देखा ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ काफ़ी खौफ है भी डॉक्टर साहब। सुनिए, आज भी मैं आज अकाली दल में हूँ ना, एक मिनट, आज अकाली दल मैंने ज्वाइन कर रखा है, कांग्रेस की सरकार है। मैं अभी डीसी को एसएसपी को टेलीफोन करूंगा, अगर वो मेरे वर्कर की बात नहीं सुनेंगे, लोगों से बेइंसाफ़ी करेंगे तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहता। और आज भी मैं दावा कहता हूँ जितनी आज पंजाब में ब्यूरोक्रेसी है, मेरा जहाँ पे वहाँ पे मित्रता और मेरा असर है, मेरा ख्याल यहाँ हमारे ज़िले में तो किसी नेता का नहीं है। और आज भी लोग गर्व महसूस करते हैं भी रिनवा साहब के पास जाके खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। आप अब आए हो, कितने आदमी निकल के गए हैं कि क्या टाइम हुआ है। मैं कोई एमएलए नहीं हूँ ना, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तो यही एक ताकत है हमारे पास, यही लोगों की दी हुई ताकत है। लोगों की ताकत लोगों के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति किसी आदमी को तंग करता है, झूठा पर्चा करता है, तो भाई मैं उसके आगे हाथ थोड़ी जोड़ूंगा। इसको यही कहूँगा भी तेरे को सबक सिखाएंगे, तू गलत काम कर रहा है। ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦਾ ਇੱਕ BDPO ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ? उसका कारण यही रहा था भी वो गरीब लोगों से पैसे ऐंठता था, बिना पैसे लिए वो कोई काम नहीं करता था। उसको समझाया गया भी गलत है और उसका असर हुआ भी, उसको नौकरी से निकाला गया उसके बाद, और वो कोर्ट में धक्के खाता फिर रहा। आज तक कोर्ट में भी उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो भाई ये एक बात है मेहता जी, बड़ी स्पष्ट। मैं इस उम्र में आके अपना जो है नीतियाँ नहीं बदलने वाला। लोगों की दी हुई ताकत है, लोगों के लिए काम करेंगे। इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। चाहे मेरे सामने ये तो आप वीडियो सबसे छोटा मुलाजिम होता है, हाँ चलो, तो जो भी बड़े से बड़ा अफसर हो, मुझे कोई उससे डर नहीं है। मैं कभी गुरेज नहीं करता लोगों की बात उठाने के लिए। अगर मेरा ये ऐसा स्वभाव होता तो मेरा काम कौन करता? ये इतने आदमी किसी रूलिंग पार्टी के एमएलए के घर नहीं बैठे होंगे। आप बैठे रहो, आज दिन से 200 आदमी होके जाएंगे भी काम से। काम होते हैं तभी आते हैं ना। तो इसलिए क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं और भ्रष्ट व्यक्ति हमारे सामने टिक नहीं सकता। या तो वो हमारा जो लोगों का वेलफेयर का काम है वो करेगा, या वो यहाँ से बदली करवा लेगा। वो नहीं करवाएगा तो हम कर देते हैं। ठीक है। पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम बन चुकी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਤੁਸੀਂ सहमत हो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, लेकिन अब सभी लोग इस बात को समझ के और राजनीति छोड़ देंगे तो इसमें भला आदमी तो कोई रहेगा नहीं। तो ये तो आगे ही जो है यहाँ तक नाक तक डूबी हुई है। ये आदमी राजनीति का जो इतनी गहराई में चला जाएगा, उससे आम व्यक्ति बहुत प्रभावित होगा उससे चीज़ों से। हमारे पास गरीब लोग आते हैं जिनके पास देने को पैसा नहीं है, या वो लोग आते हैं दलित वर्ग के आते हैं, बैकवर्ड क्लास के आते हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती।
पैसे वाला आदमी तो आजकल का जो भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है उसको ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास आने की। वो तो सिर्फ इसलिए आता है भी हम पे कोई कल को मुसीबत पड़ जाए तो भी डॉक्टर साहब बचा लेना। बाकी तो आप देखते रहे हो, गाँवों के आदमी, शहर के दलित वर्ग से पिछड़े हुए लोग, जिनकी समस्याएं हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो लोग यहाँ ज़्यादा हमारे पास अपने बात के लिए आते हैं, अपनी जो मुश्किलें हैं उसका हल के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि लीडर और सियासी पार्टियां अपने कीते वायदे जो इलैक्शन दे विच मैनीफेस्टो जारी करते हैं वो फुलफिल नहीं होंदे। लोग फिर तो ठगा महसूस करते हैं, फिर अगली बारी किसी होर नूं चुनते हैं, फिर वही हाल होंदा है। इनू किस नज़र नाल देखदे हो? आपकी बातें कुछ हद तक ठीक भी हैं भी वोट लेने के समय बहुत बड़ी वायदे कर दी जाते हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है भी कम से कम मैं अपने स्तर पे मैं झूठा वायदा नहीं करता। राजनीतिक पार्टी में अब इसमें आए हैं, अभी 13 पॉइंट प्रोग्राम बादल साहब ने अनाउंस किया है जो को सबको छूने वाला है। अगर बिजली की बात की है, मुफ्त बिजली देने की, तो आज बिजली का इतना बड़ी महंगी बिजली हो गई है, गरीब आदमी क्या मैं और आप अफोर्ड नहीं करते, एक आदमी का इतना भारी बिल आ रहा है। अगर डीजल की बात करें तो 100 रुपये से ऊपर डीजल चला गया है। पिछले 1 साल के अंदर 25 से 30 रुपये डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। तो कहाँ से वो, जो सबसे बड़ा बात तो किसान की है, जो सारा उसका काम डिपेंड डीजल पे करता है, तो उसके लिए उन्होंने 10 रुपये स्टेट गवर्नमेंट, हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 10 रुपये डीजल पे सब्सिडी किसान को देने का वायदा किया है। और उससे बाद जो आज के महंगाई का युग है, आप जीडीपी को देख लो और इन्फ्लेशन रेट देख लो, कितनी बड़ी इन्फ्लेशन हो गई है। तो वहाँ उन्होंने कहा भी मैं 2000 रुपये जो घर की मुख्य महिला है उसको हर महीने हम देंगे। उसका भी मंतव्य है, वो कोई रिश्वत नहीं है कि उसको लुभाने के लिए दिए हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है गरीब आदमी, रेडी वाला, छोटा दुकानदार, खेत में काम करने वाला, अनस्किल्ड वर्कर, वो सुबह जाता है अपने काम पे, रात को आता है। तो घर को जो मैनेज करना है, घर में राशन मुहैया कराना है, बच्चों की फीस है, बच्चों को कपड़े हैं, वो जो है महिला करती है। तो इसलिए इन सब बातों पे, क्योंकि सबसे सुझाव लिए गए पार्टी के अंदर कि क्या कुछ हमें आने वाले चुनावी घोषणा पत्र में रखना चाहिए, और इसको सभी लोगों ने इसको एंडोर्स किया, इसलिए उसको 2000 रुपये वाले को डाला गया है। अब बुढ़ापा पेंशन की बात कर लो, अब आज 4 महीने चुनाव को रहे हैं, 1500 रुपये की है, और जबकि कैप्टन साहब का वायदा 2017 का था भाई मैं घर घर रोज़गार दूंगा, रोज़गार नहीं दूंगा तो मैं रोज़गार भत्ता दूंगा। तो ये इस तरीके की जो लोगों को लुभावने वायदे करना वो गलत है। उन्होंने कहा था मैं नशा मैं 1 महीने में बंद कर दूंगा। अरे भले आदमी गुरु ग्रंथ साहब की सौगंध खा के, गुटखा साहब पे हाथ रख के, और आज सबसे बड़ा पंजाब के अंदर आज बर्बादी का जो काम चल रहा है वो सिर्फ एक नशा है। आज हर मोहल्ले में और ख़ास करके स्लम एरिया में खुलेआम चिट्टा बिक रहा है, शराब जो है एमएलए बिका रहे हैं। इसका बड़ा सबूत है वो क्या नाम है, वो घनौर से एमएलए थे मदन लाल जी जलालाबाद, उनकी नकली शराब बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। तो इससे बड़ा और क्या है अभी आज जब शासक ही लोगों के अंदर जो बुराई पनप रही है, जिससे बर्बादी हो रही है, उसको ना रोक पाए, ये कभी हो सकता है क्या? आप मुझे 3 दिन दे दो, कम से कम मैं फाजिलका ज़िले के अंदर आपको दावा कहता हूँ कि मेरे पुलिस नीचे कर दो, मैं एक भी आपको नशे का व्यापारी नहीं मिलने दूंगा। मन विल होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है व्यक्ति के अंदर। तो महाराजा साहब ने तो ऐसे है, ही इज़ नॉट ए कॉमन मैन, वो हम सबसे अलग हैं। और उन्होंने जब वो मिलने को अपने एमएलए मंत्री को मिलने के लिए तैयार नहीं, आप देख रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आज जो है पंजाब की हालत किस कदर जर्जर पहुँच गई है। जब मैं पहली बार एमएलए बना तब पंजाब में 8000 करोड़ रुपए का, वो भी टेररिज्म पैरामिलिट्री फोर्सेस को पैसे देने पड़ते थे, उनकी तनख्वाह देनी पड़ती थी, 8000 करोड़ रुपया कर्जा था। आज 30 साल में 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जा हो चुका है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? कोई अमरिंदर सिंह ने घर से नहीं देना, कोई बादल साहब ने घर से नहीं देना, ये सरकार का पैसा है, लोगों का पैसा है, और उस लोगों को पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अगर यही पैसा पंजाब के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए, हैवी इंडस्ट्री लाने में खर्च किया जाता तो आज पंजाब, मैं तो देश नहीं दुनिया में पहले नंबर पे होना था। डॉक्टर साहब, एक जी मुफ्त की राजनीति सारिया पार्टियां कर रही हैं,
ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ मुफ्त। देखो, मैं इस बात से, आपकी बात से सहमत हूँ कि फ्री बाइज जो है वो बंद होनी चाहिए। पंजाब के अंदर सबसे पहले बादल साहब ने ही किसान की जो हालत थी उसको देख के बिजली मुफ्त की थी, और उसके बाद जो है इस तरीके का ये बढ़ावा कोई अकेले पंजाब में नहीं, पूरे देश के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसका कारण ही एक ही है कि सबसे बड़ी जो विरोधी पार्टी थी, जो अपोजिशन है, वो सरकार को, रूलिंग पार्टी को गलत काम करने से रोकती है, वो विरोधी पार्टी करती है। जब यहाँ विरोध ही नहीं रहा तो आज उसी का कारण है, आज नरेंद्र मोदी जी जो है डिक्टेटर बने हुए हैं, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, वो अपने मंत्री की नहीं सुनते, अपने मुख्यमंत्री की नहीं सुनते। आप देख रहे हो, पिछले आज उनको तकरीबन 7 साल से ज़्यादा समय हो गया है। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? मेरे मुताबिक कोई इफेक्ट करने वाला नहीं है। ये इन्होंने लोगों ने, और ख़ास करके जो विरोधी पार्टियों के नेता थे, उन्होंने एक ये षड्यंत्र रचा था। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अगर आप बरगाड़ी कांड की बात करते हो तो आज श्रोमणी अकाली दल दिल्ली में दोबारा उसने जीत का परचम लहराया। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह कर दिया गया था। कुछ चंद लोग थे, आप देख रहे हैं पिछले 15-20 साल के अंदर श्रोमणी अकाली दल के कितने धड़े अलग होके गए हैं, कोई जमानत भी नहीं बचा पाया है। अब सुखदेव सिंह ढींडसा जी पिछले 20 साल में कोई चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन वो बीजेपी ने पार्टी की जो है उनकी पीठ को थपथपा रहे हैं, तो वो अकाली दल का नुकसान करने के लिए कभी संयुक्त पार्टी बना रहे हैं, कभी अकाली दल जो है ब्रह्मपुरा साहब के साथ जा रहे हैं, अब कभी कहते हैं हमें आपसे समझौता करना है। तो किस तरीके की राजनीति है? जो आदमी 20 साल तक चुनाव ना जीत सका हो, और सरदार प्रकाश सिंह बादल ने पुराने साथी होने के नाते उनको 4 बार राज्यसभा में भेजा है। आप जानते हैं राज्यसभा में तो जो सरकार के एमएलए वो चुन के भेजते हैं, और आज उनको भी अपना ये ग्रीवेंसेस है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि 5 साल के बाद जब चुनाव आता है, वो जो लोग हैं वो फैसला करते हैं कि हमारा लीडर कौन है, तो उनको पता लग जाएगा। उनके जो साथी है छोड़ के कोई आप में जा रहा है, कोई अकाली दल में वापस आ रहा है, किस तरीके का माहौल आज आप देख रहे हैं। तो अब 4 महीने रह गए हैं, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਮਾਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ किस नज़र डाल देखते हो? भाई कांग्रेस पार्टी में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो मैं छोड़ के क्यों आता भाई? बड़ा मुश्किल होता है अपनी पार्टी को छोड़ना। ठीक है, और आपके सामने है ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये जब चुनाव में जनवरी का महीना में जब टिकटें बांटने होगा तब आप देखना ये लड़ाई किस तरह उग्र रूप धारण करती है। और आज सबसे बड़ा जो इशू होगा इस चुनाव के अंदर वो एमएलए और मंत्रियों के भ्रष्टाचार का होगा। अरे वो उनके खुद के मंत्रियों पे लग रहे हैं, चाहे वो बलबीर सिद्धू है, उस पर 3 करोड़ जो है नशे की दवाइयाँ गबन करने का आरोप है। किस तरीके का? इसी तरीके के आरोप धर्मसोत पे लग रहे हैं। अरे गरीब हरिजन लोगों के बच्चों के वो जो स्कॉलरशिप के पैसे खा गया, किस तरीके से लोगों पे एक पे नहीं 5-5 पे लग रहे हैं। ब्रह्म महिंद्रा जी पे लग रहा है, फूड्स एंड सप्लाई मिनिस्टर पे लग रहा है, चीफ मिनिस्टर के जो आसपास रहने वाले उन लोगों के पास हो रहा है। ये तो जब सरकार बदलेगी तब एक इस तरीके की जो है इस बार फैसला किया है कि कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कानून के दायरे के अंदर लाके उसको सजा दी जाएगी। ABP ने एक सर्वे करवाया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਥਰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? वही पिछली बार भी कह रहे थे 85 सीटें आपकी आ रही हैं, 20 आई थी। मैं तो अभी इस बात में कोई इन बातों में विश्वास नहीं करता किस तरीके की है। आज उनके पास तो यार मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। आज उनके 20 MLA जीते थे, 6 MLA छोड़ के चले गए हैं, उम्मीदवार नहीं मिल रहा है।
उनको। और दूसरी बड़ी बात है, जो आज कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हर एमएलए जो पहले अकाली दल पे आरोप लगता था रेत माफिया का, शराब माफिया का, भू माफिया का, वो उन पे लग रहा है। अब तो एक नया माफिया आ गया है, वो इंटरलॉकिंग टाइल। हर एमएलए ने, कांग्रेस के हर एमएलए ने, कोई 2 4 10 छोड़ दो, इंटरलॉकिंग टाइलों की फैक्ट्री लगा रखी है। आप वो फाजिलका वाले एमएलए की देख ले, आप यहाँ पे नथुराम बलवाने वालों की, उनकी फैक्ट्री लगी हुई है। जाकर साहब बड़े लीडर हैं, इनके पीए ने फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं। तो भी ये जब समय आने पे इन सब का पर्दाफाश होगा और लोगों के सामने लेके आएंगे। आज सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगा के और जो पब्लिक का पैसा है वो मिसयूज़ हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत 10 महीने पुराना एजिटेशन हो गया किसानों का। वो दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? भाई देखो, सबसे बड़ी बात है जो उसके अंदर मैंने सारा वो बिल पढ़ा है मैंने। सबसे बड़ी बात है जो एमएसपी ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इसको कारपोरेट सेक्टर को हवाले करने जा रहे हैं, चाहे वो अडानी है, चाहे रिलायंस है, कोई और उनका भाई ले आए। किसान को जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, तो आज भी मैं महसूस करता हूँ 40 रुपये कोई भाव नहीं बढ़ा है, जबकि उसकी जो कॉस्ट है वो 65 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है। तो उससे किसान को क्या फ़ायदा होने वाला है? लेकिन पंजाब के किसान के पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है गेहूं की, कोई दूसरी फसल बीज की। इसी तरीके से उसके अंदर एपीएमसी एक्ट है। अब 4000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को मंडी फीस से और इन जो ये सेस लगा रहे हैं हम, उससे होता है। और वो 4000 करोड़ रुपये गाँवों की लिंक रोडों के लिए, गाँवों के अंदर मंडियाँ बनाने के अंदर। आज मैं दावा करता हूँ किसी किसान को 5 से 7 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता अपनी फसल को, जिन्स को बेचने के लिए। जिस दिन ये बंद हो जाएगी, किसान की हालत उससे भी बुरी हो जाएगी। कहाँ वो बेचेगा? वो तो कहते हैं भी ओपन मंडी होगी, तो हो सकता है 1-2 साल वो 100-200 रुपये भाव ज़्यादा दें, लेकिन उसके बाद वो अपनी मनमानी करेंगे। फिर किसान फसल कहाँ लेके जाएगा? तो उसके अंदर मैं यही कह रहा था भी किसान आंदोलन के अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो अकाली दल ने की है। अकाली दल ने जब वो अमेंडमेंट लेके आए थे, पहले ऑर्डिनेंस जारी किया, तब हरसिमरत कौर उस कैबिनेट का हिस्सा थी, उसने अपना डाइसेंटिंग नोट दिया, और जब वो नहीं माने तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया। आज तो भाई मेंबर पंचायत को कह दो, वो इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है, तो कैबिनेट से जो है इस्तीफ़ा देना, और इतना बड़ा जो अलायंस था जो वाजपेयी साहब ने और सरकार प्रकाश सिंह बादल ने किया था, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ किसान की बात आई, अकाली दल के सुप्रीमो ने ये कहा कि हम इस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, और पार्टी उस कैबिनेट से बाहर आके आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुद्दे ते आइए, तुहानू अबोहर तो अकाली दल ने अपना उम्मीदवार ऐलान दिता है। अबोहर भी फाजिलका डिस्ट्रिक्ट का एक कंस्टिट्यूंसी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट फाजिलका वास्ते ते अबोहर वास्ते तुहाडा मास्टर प्लान की है? जहाँ तक प्लान की बात है, क्योंकि छोटा सा पंजाब है और मुझे इस बात का और भी गर्व है भी जो आने वाला मुख्यमंत्री है पंजाब का, वो हमारा मेंबर पार्लियामेंट हमारे फिरोजपुर जो है पार्लियामेंट्री क्षेत्र से, जिसमें फाजिलका ज़िला सारा आता है। और सबसे पहला है क्योंकि ये टेल का इलाका है और यहाँ पे पानी की समस्या से लोग 50-60 साल से जूझ रहे हैं। हालांकि जाखड़ परिवार ने 40-50 साल तक इस इलाके की नुमाइंदगी की और वो इरिगेशन मिनिस्टर भी रहे, बड़े जाखड़ साहब भी रहे, फिर सज्जन कुमार जी भी सिंचाई मंत्री रहे, सुनील जाखड़ जी भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, फिर उसके बाद प्रधान बन गए। उन्होंने उस मसले का हल नहीं किया। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की, उसका हल किया जाना चाहिए। चाहे इसके लिए इसमें एडिशन पानी की सप्लाई और बढ़ाओ, और जो वाटर कोर्सेज हैं, तो बादल साहब ने ये वायदा किया है भी मैं पाइपलाइन सिस्टम कर दूंगा ताकि पानी की चोरी ना हो सके, और नहरों की कैपेसिटी बढ़ा के लोगों को टेल तक पानी दिया जाएगा। और जो दूसरी बड़ी बात है, मास्टर प्लान तो देखो ऐसा है, सरकार बनने के बाद जैसे जैसे प्रायोरिटीज़ होंगी, यहाँ पे सेहत सेवाओं के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। चंडीगढ़ भी 300 किलोमीटर है, लुधियाना 200-250 है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी बीमारियाँ हैं, उसके लिए उन्होंने एक ही बात की है भी मैं मेडिकल कॉलेज फाजिलका ज़िले में खोलूँगा।
वैसे तो उनका जो है मैनिफेस्टो में भी है, हर ज़िले हेडक्वार्टर पे जो है मेडिकल कॉलेज लोगों की सुविधाएं के लिए खोलेंगे। लेकिन विशेष करके क्योंकि वो खुद यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, लोगों ने उनको वोट दे के अपना नुमाइंदा चुना है। पंजाब में सबसे ज़्यादा वोटों पे सुखबीर सिंह बादल जीते थे जबकि कांग्रेस की सरकार थी। तो मुझे पता है अभी ही इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट, जो बात कहते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। तो हमारे ज़िले के अंदर, क्योंकि फाजिलका ज़िला भी अकाली दल की सरकार में बना, और जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो नहरों का है, अब आज पत्थर रख के और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं संदीप जाखड़। ये नाबार्ड से 2015 के अंदर अकाली दल की सरकार के अंदर नई नहरों का नवीनीकरण का जो है प्रोजेक्ट आया था। तो तीसरी जो बड़ी चीज़ मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो यही है, जिसमें पूरे ज़िले के अंदर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ की लोगों को रोज़गार मिल सके। तो हमारी कोशिश होगी कम से कम यहाँ कोई बड़ा एक उद्योग लगे जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके, एंसिलरी यूनिट लग सके, लोग छोटे छोटे अपने काम वो पुर्जे सप्लाई बनाने के करके उस यूनिट को दे सकें। ये आज तक हमने 2-3 बातें हैं जो उनसे डिस्कस की हैं और उन्होंने सहमति भी प्रकट की है भी पहल के आधार पे। जैसे हम कांग्रेस की तरह ऐसी नीतियां नहीं लाने वाले, जो भी हम अनाउंस करेंगे उसको 1 महीने के अंदर जो वेलफेयर स्कीम है उनको जिस दिन सरकार बन जाएगी 1 महीने में लागू करेंगे। और जहाँ तक इंडस्ट्री का, मेडिकल कॉलेज का, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन पहली और दूसरी कैबिनेट में ये पास किया जाएगा कि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उस ज़िले को पहले प्रायोरिटी दी जाए। और हमारा हक डबल बन जाएगा, एक हमारा मुख्यमंत्री होगा, एक हमारा मेंबर पार्लियामेंट होगा। ठीक है, चाहे उनको इस्तीफा देना पड़े, लेकिन ये लोगों ने उनको इतना मान और सम्मान दिया है, वो इस बात के लिए फिरोजपुर और फाजिलका के लोगों के ग्रेटफुल भी हैं। डॉक्टर साहब, एक दोष ये है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ विरोधी पार्टी की मदद कर दी, जिस कारण ਤੁਹਾਨੂੰ कांग्रेस ਵਿੱਚ अनदेखा किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो 92 में नहीं दी थी। जिसको जाखड़ साहब ने अपने रिश्तेदार लेडी को दी, वो पता नहीं कहाँ की रहने वाली थी, सेशन जज की घरवाली, लोगों ने नकार दिया, उसकी जमान जब्त कर दी। उसके बाद कांग्रेस ने मुझे टिकट दी, चाहे मैं जीता चाहे हारा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मुझे तो एक ही बार 2017 में रिफ्यूज़ की गई, अभी मेरे राजनीति में आने के बाद। अपना मुकाबला किस उम्मीदवार नाल वेखदे हो ते अकाली दल दी फाइट किस पार्टी नाल होएगी पंजाब अंदर? ये तो जग जाहिर है, अकाली दल की फाइट जो है कांग्रेस के साथ ही होने वाली है, और तो कोई पार्टी मुकाबले में नहीं है। बीजेपी का तो मेरा ख्याल है शायद एक भी सीट ना जीत पाए। वो तो उनको तो 117 उम्मीदवार जो है ढूंढने पड़ रहे हैं आज भी, और जिस तरीके से उनको लोगों में किसान जो है उनका विरोध कर रहे हैं, गाँवों में जाने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा नहीं अंदाज़ा लगता, अगर इसी तरीके का ये जो माहौल चलता रहा तो बीजेपी विल स्टैंड एनीवेयर। तो हमारा तो सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। और मैं समझता हूँ, अभी कल 2-3 दिन पहले बड़े जाखड़ साहब, सुनील जाखड़ जी यहाँ आए थे, तो अखबार वाले आप वाले जो हैं वो छापते रहते हैं ये उम्मीदवार होगा। मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सुनील जाखड़ साहब लड़े, संदीप जाखड़ लड़े। हमें तो वो बात है भी जब अर्जुन को कृष्ण ने पूछा क्या दिखाई देता है, भी मछली की आँख दिखाई देती है। हमने चुनाव जीतना है और सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री बनाना है पंजाब के लोगों ने, तो उनका हाथ मजबूत करने के लिए एक हल्के में नहीं, मेरे पे बलुआना की भी जिम्मेवारी है, फाजिलका में भी जिम्मेवारी है। आज भी सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं, आप कह रहे हो भी आपसे नाराज़ हैं, मैं कहता हूँ भी बलुआना हल्का रिजर्व है, फिर भी वो लोग कहते हैं जी रंगवा साहब को लेके आओ। फाजिलका दे लोकां लई, जिले दे लोकां लई और अपने वोटरां लई की संदेश देना चाहोगे? तो आज की तारीख के अंदर तो यही है कि हमारे ज़िले के लोग, इस बात का भी मैं गर्व महसूस करता हूँ, बड़ी शांति में लोग हैं और वो समय आने पे सही फैसला करेंगे। तो आज जो 4.5 साल लोगों ने दुख झेला है, जो झूठे पर्चे हुए हैं लोगों पे और जो विकास के नाम पे लोगों को लूटा गया है, उसका जवाब आने वाले समय के अंदर अकाली दल को वोट देके अपनी पूरी विश्वास अकाली दल में जब देंगे। और यही मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी बेनती है और यही मेरा संदेश है कि हर वर्कर को तकड़े होके पूरे ज़िले के अंदर, क्योंकि अगर पूरे ज़िले में हमने, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 1,30,000 वोटों से
अकाली दल हमारे ज़िले से जीता है और 70,000 बाकी 5 हलकों में जीता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, लोगों का विश्वास ही था अकाली दल में। उनका गृह जिला था सरदार सुखबीर सिंह बादल का मलोट और मुक्तसर, वहाँ तो सारी लीड 15,000 की आई और इस ज़िले से 1,30,000 से आई। तो कुछ तो रहा होगा उनमें, उनकी लीडरशिप के अंदर। तो मुझे पूर्ण विश्वास है पूरे पार्लियामेंट की 9 सीटें अकाली दल जीतने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका यहाँ आने पे और आपने इतना समय दिया, क्योंकि एक प्रजातंत्र के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो चौथा थंब माना जाता है वो प्रेस का माना जाता है। अगर आज प्रेस इतना मजबूत ना होता तो मेरा ख्याल है आम आदमी के साथ कहीं न्याय होने की ऐसे सेटअप के अंदर उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए आपके सभी पत्रकार साथियों का ही नहीं, विशेष करके मेहता जी आपका और आपके दोनों साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ।